نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، آیت نمبر 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری مرتبہ سفر کر کے مصر گئے، بنیامین کو ساتھ لے کر گئے۔ چوری کے الزام میں بنیامین کو وہاں پر قید کر لیا گیا۔ آ کر اپنے والد محترم کو بتایا، بہت غمگین ہوئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو ذمہ لگایا کہ جاؤ میرے بیٹو، جا کر تلاش کرو، یوسف کی تلاش کرو، بنیامین کی تلاش کرو۔ اب بھائی تیسری مرتبہ مصر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس میں دو مقصد تھے۔ ایک تو اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ غلہ حاصل کرنا ہے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ والد صاحب نے جو ذمہ لگایا ہے بھائیوں کی تلاش کرنی ہے، تو بنیامین کا تو پتہ تھا کہ وہاں پر قید کر لیے گئے، ان کی رہائی کا انتظام کیا جائے۔ وہاں پر چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے درخواست پیش کی غلہ حاصل کرنے کی، اور والد صاحب کا خط بھی دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، اور آپ نے اپنا آپ ظاہر فرما دیا۔ بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو یہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج مصر کا اتنا بڑا تخت و تاج عطا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض دیا کہ یہ جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر لگاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرما دیں گے۔ جب یہ قمیض حدود مصر سے باہر نکلی، یہ قافلہ نکلا اور حدود مصر سے باہر نکلا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں۔ سینکڑوں میل کا سفر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام فلسطین میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں۔ 8 دن کی مسافت تھی تقریباً یہ۔ تو جب یہ قمیض لے کر وہاں سے نکلے قافلے والے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر تم مجھے بڑھاپے کا طعنہ نہ دو، بوڑھا ہونے کا طعنہ نہ دو، تو مجھے آج اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن جو ساتھ والے تھے، برادری والے، کوئی دوست، ان سب نے یہی کہا، انہوں نے کہا جی اب یوسف کہاں سے آ جائے گا، 40 سال ہو گئے اس کو گئے ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، چھوٹا سا تھا اس وقت جب جدا ہوا۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ جو اللہ کی رحمتوں کے بارے میں مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں۔ اللہ کی طرف سے
कोई भी खुशखबरी किसी वक्त हो सकती है। अब वो वक्त आ गया कि जब काफिला चलता हुआ यहाँ पर पहुँचा मुल्क शाम में। यहाँ पर एक बात ये देखें कि ये जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशबू आई, ये मौजज़ा थी। एक वो वक़्त था कि जब बेटा घर से सिर्फ 3 मील के फासले पर एक कुएं के अंदर 3 दिन तक पड़ा रहा। अल्लाह ने उस वक़्त जाहिर नहीं फरमाया, खुशबू नहीं आई, तो उस वक़्त 3 मील का फासला है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता नहीं चल सका। और जब पता चलने पे आया तो अभी सैकड़ों मील का सफ़र है और आज मौजज़तन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खबर दे दी और आपने फरमाया कि मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। काफिला आ गया। इस काफिले में और भी बहुत से लोग थे किनान के, जो कि गल्ला लेने के लिए गए हुए थे। इन कमीज लेकर आने वाले भाइयों में यहूदा भी मौजूद था। उसने भाइयों से दरख्वास्त की कि कमीज मुझे दी जाए, मैं जाकर बाप को यह खुशखबरी सुनाऊंगा, क्योंकि आज से 40 साल पहले मैं ही था जो यूसुफ की कमीज लेकर अपने बाप के सामने गया था, जब वो खून से आलूदा भरी हुई कमीज हमने बाप को दिखाई थी। तो परेशानी की इतनी बड़ी गमनाक खबर भी मेरे जरिए ही बाप को मिली थी। आज मैं ये चाहता हूं कि इतनी बड़ी खुशी की खबर ये भी मेरे जरिए ही अब्बू को मिले और वो खुश हो जाए। 6 साल हो गए थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई खत्म हो चुकी थी। बुढ़ापा भी है, गम भी है और कमजोरी लाहिक है। आप लेटे हुए हैं और कमीज लाने वाले ने सबसे पहले आते ही सलाम किया और आपकी आंखों पर वो कमीज लगा दी। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बिनाई अता फरमा दी, आंखों में रोशनी आ गई। आप उठ के बैठ गए, खुश हो गए। अब खुशखबरी सुनाई गई कि आपके बेटे यूसुफ जिंदा हैं। कहां पे हैं? कहां पे मिले वो मुल्क के मिस्र के बादशाह हैं जिनसे अब तक हम गल्ला लेकर आ रहे हैं, वो वही हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा कि बेटा वो किस हालत में हैं? अर्ज किया कि अब्बू जी वो तो मुल्क मिस्र के बादशाह हैं। फरमाया हमें बादशाह से क्या गर्ज है, हमें दुनिया से क्या गर्ज है, क्या लेना देना है। ये बताओ कि वो सही दीन पर भी है या नहीं है। बताया कि वो दीन इस्लाम पर हैं और ज़ुहद और तकवा में हैं और नेक हैं। बहुत खुश हो गए। ये औलाद की फिक्र हर वालिदैन के लिए ज़रूरी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये सबक दे रहे हैं। उसकी वजह वो अभी आगे मैं अर्ज करता हूं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी की खबर अता फरमाई, अब इस खुशी की खबर देने का तुम्हें इनाम भी देना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो इस वक्त कोई इनाम नहीं, क्योंकि कहत साली चल रही थी और गुर्बत भी थी। किनान शहर का आगे देहात थे, उनमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे। गुर्बत थी, कोई हालात इतने बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे।
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے مال دولت دینے کے اعتبار سے کوئی چیز تو نہیں، لیکن پیارے بیٹے میں تمہیں دعا دیتا ہوں، یہ بھی بہت بڑا انعام، دعا دیتا ہوں انعام کے طور پہ، اللہ کی ذات تمہیں موت کے سکرات سے محفوظ فرما دے، سکرات موت، موت کی سختی سے میرا اللہ تمہیں محفوظ فرما دے۔ یہ دعا دے دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بندے کو جس نے اتنی بڑی خوشی کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر سنائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر سننے کے بعد اب یہ پیغام دیا گیا کہ آپ تیاری فرما لیجئے، اب ہم سب مصر جانے والے ہیں بیٹے یوسف سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ہاتھ ایک تو قمیض بھیجی تھی، دوسرا اس سفر کے لیے 200 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، ساز و سامان سے، کپڑے سے، پوشاک سے، اعلیٰ قسم کے چیزوں سے، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے تحفہ تھا اپنے ان گھر والوں کے لیے، کیونکہ اب یہ لوگ جا رہے تھے بادشاہ مصر کے پاس، عزیز مصر کے پاس جا رہے تھے، اور پوری سلطنت، پوری رعایا، پوری کابینہ اور عوام مصر ان کے سامنے ان لوگوں نے جانا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین عمدہ قسم کے کپڑے اور بہت سا ساز و سامان یہ 200 اونٹوں پر لاد کے یہ روانہ کیا کہ اب تیاری کر کے مصر آ جاؤ۔ اب ان لوگوں نے تیاری کی، اس میں خاندان کے اور افراد بھی تھے، اور باقی یہ جو بھائی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں، تو یہ اب خاندان پورا جا رہا ہے مصر کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے مصر سے باہر تشریف لاتے ہیں، پوری رعایا، کابینہ، وہ سب لوگ ساتھ ہیں، 4000 تعداد ہے سپاہیوں کی گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے، وہ قطاریں لگی ہوئیں، لائنیں لگی ہوئیں کہ عزیز مصر کا خاندان ملک شام سے آج مصر کی دھرتی پر قدم رکھنے والا ہے۔ اور مصر میں ایک بہت بڑا کھلا میدان تھا، وہاں پر خیمے سجائے گئے اور استقبال کے لیے باقاعدہ سارے کا سارا انتظام کیا گیا۔ مفسرین اکرام نے استقبال کرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ تک لکھی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ابو، مجھے پتا چلا ہے کہ 40 سال ہو گئے آپ روتے رہے میری جدائی کے اندر۔ انہوں نے کہا جی بیٹا، میں 40 سال آپ کے غم میں روتا رہا۔ ابو، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر میں دنیا میں آپ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا تو قیامت کے دن آپ سے ملاقات ہو جائے گی؟ آپ پھر بھی کیوں روتے رہے؟ جواب سنیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، پیارے بیٹے، میرا رونا اس بات پر تھا کہ میرا یہ ننھا منھا سا بچہ 7 سال کی عمر میں مجھ سے جدا ہو گیا، پتہ نہیں کن ہاتھوں میں چلا گیا،
किस मजहब पर जिंदगी गुजार रहा है, किस दीन पर चल रहा है। मुझे तो परेशानी ये थी कि मेरा बेटा किस हालत में होगा, किन हालात में सांस ले रहा होगा। क्योंकि प्यारे बेटे, मुझे इस बात का इल्म था कि क़यामत के दिन मुलाकात तो तब होगी अगर दीन इस्लाम पर बेटा होगा तो बाप के साथ क़यामत के दिन इस्लाम की वजह से आमना सामना हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। अगर बाप काफिर, बेटा मुसलमान, रास्ते जुदा हो गए, बाप मुसलमान, बेटा काफिर, रास्ते जुदा हो गए। बीवी और खामिद दोनों के दरमियान रास्ते जुदा जुदा हो गए, मजहब जुदा होने की वजह से। अगर मजहब एक है, दीन इस्लाम पर है और आमाल कमज़ोर भी हैं, अल्लाह अपनी रहमत की चादर डालेंगे, मुलाकात भी करवाएंगे, जन्नत में भी दाखिल फरमाएंगे और जन्नत में एक ही दर्जे तक भी अपनी रहमत से पहुंचा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि बंदा दीन इस्लाम पर हो। अगर इस्लाम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। प्यारे बेटे, मुझे गम इस बात का था, ये वजह थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के रोने की। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को औलाद का फिक्र था। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंच गए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब मुलाकात बाप और बेटे की हो रही है, इसमें 40 साल फासला है दरमियान में। इन 40 सालों के अंदर बड़े बड़े हालात आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, जिसमें भाइयों ने कुएं के अंदर फेंक दिया और उसके बाद भाइयों ने एक काफले वालों के हाथ बेच दिया। उसके बाद काफले वालों ने लाकर आपको मिस्र की मंडी में फरोख्त कर दिया। वहां से अजीज मिस्र ने खरीदा तो जुलेखा ने आपके ऊपर बोहतान लगा दिया, आपको बिला वजह जेल के अंदर डाल दिया गया। ये कितनी मुशक्कतें और कितनी तकलीफें थी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सारी गमनाक दास्तान अपने बाप को नहीं सुनाई। नेमतों का भी तज़किरा किया और साथ थोड़ी सी जो बात थी वो भी जिक्र कर दी, लेकिन भाइयों को बिल्कुल परेशान करने की और तकलीफ का नाम तक नहीं आने दिया। फरमाया वलम्मा फसलतिल ईरो, वलम्मा और जब, फसलतिल ईरो, फसलत का माना जुदा हुआ, अल ईरो काफला। काला फरमाया अबूहुम उनके बाप ने, इन्नी ला अजिदु बेशक मैं पाता हूँ, रिह यूसुफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू, लौला अन तुफन्निदून अगर तुम मुझे बूढ़ा ना कहो। तुफन्निदून के बूढ़ा आदमी है और बह गया है और इनको बार बार वही अपने बेटे का ख्याल आ रहा है। अगर तुम मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगाओ तो आज मुझे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही। कालू कहने लगे, तल्लाही अल्लाह की कसम, इन्ना का बेशक आप तो लफी ज़लाली का अपनी गलती में है, अल कदीम पुरानी। ये तो गलती पुरानी गलती हो गई। अब तो बार बार यूसुफ को याद करते 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 अब 40 साल से ज्यादा अरसा हो गया, अब भी आप यूसुफ यूसुफ कर रहे हैं, तो पुरानी गलती पर हैं। फलम्मा फिर जब अंजा अल बशीरो आ गया खुशखबरी सुनाने वाला, अलकाहू डाल दिया उसको, यानी जो कमीज थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उसको डाल दिया, अला वजही इनके चेहरे पर। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को जब लाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया तो कमीज की खुशबू हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिमाग को पहुंची। अल्लाह ने वहां से इनको बिनाई अता फरमा दी। फरतद्दा बसीरा, सुबहान अल्लाह, बिनाई वापस आ गई। काला
फरमाया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, अलम अकुल लकुम, क्या मैं नहीं कहता था तुम्हें, इन्नी अअलमु मिन अल्लाहि, कि मैं ज़्यादा जानता हूँ अल्लाह के बारे में, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। अब भाइयों ने दरख्वास्त पेश की कि अब्बू जी ये तो सारा मामला ठीक है, लेकिन अब हमें शर्मिंदगी हो रही है। कालू, कहने लगे, या अबाना, ए हमारे अब्बू, इस्तगफिर लना, हमारे लिए इस्तिगफार करें, जुनूबना, हमारे गुनाहों के लिए इस्तिगफार करें, इन्ना कुन्ना खातिईन, क्योंकि हम ही गलती पर हैं, हम गुनाह करने वाले, गलतियां करने वाले, बड़ी गलतियां की, बड़ा सताया आपको और बड़ा सताया आपके बेटे यूसुफ को, आप हमारे लिए इस्तिगफार करें। काला, फरमाया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, सौफ अस्तगफिरु लकुम, अनकरीब मैं इस्तिगफार करूंगा तुम्हारे लिए, रब्बी, अपने रब से। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बेटों ने कहा कि आप इस्तिगफार करें और आप फरमा रहे हैं कि मैं इस्तिगफार करूंगा, अभी क्यों नहीं कर दिया? उसका एक जवाब ये है कि चूंकि मामला हुकूकुल इबाद का था, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मेरा इख्तियार कम है, तुमने यूसुफ के साथ बहुत नुकसान किया और बहुत उनके हक दबाए, पहले उनसे माफ़ी दिलवा लेंगे और फिर अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांग लें, क्योंकि हकूकुल इबाद का मसला ऐसा है कि जब तक हक वाला बंदा खुद माफ़ नहीं करता, अल्लाह की ज़ात भी बंदों को माफ़ नहीं करती। इसलिए इंसान को चाहिए कि हकूकुल इबाद का मसला दुनिया में ही इसको क्लियर करवा के रखे। अगर ये इंसान दुनिया में अपने सर पर लेकर चला जाता है तो फिर क़यामत के दिन उसको पकड़ होगी और वो अल्लाह के दरबार में पेश होगा और उसकी नेकियां उस बंदे को दे दी जाएंगी जिसका इसने हक दबाया था। दूसरी वजह यह थी कि आपने फरमाया कि मैं इस्तिगफार करूंगा, कि तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला से आपके बारे में इस्तिगफार करूंगा, क्योंकि वो कबूलियत का वक़्त है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। फलम्मा दाखलू, फिर जब दाखिल हुए, अला यूसुफ, यूसुफ के पास, आबा इलैहि, उन्होंने ठिकाना दिया अपने पास, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने पास नशिस्त में अपने साथ बिठाया, अबवैहि, अपने वालिदैन को अपने पास ठिकाना दिया। वक़ाल अदखुलू, और फरमाया कि दाखिल हो जाओ मिस्र में, इंशाअल्लाहु आमीनीन, इंशाअल्लाह अमन के साथ मिस्र में, क्योंकि ये जो इस्तकबाल के लिए निकले थे ये शहर से बाहर आ गए थे। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अब्बू तशरीफ़ लाइए और मिस्र के अंदर दाखिल हो जाएं, इंशाअल्लाह आप अमन से होंगे, यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मिस्र शहर के अंदर जाकर आप सल्तनत के ऊपर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, वरफ़अ, और ऊंचा बिठाया, अबवैहि, अपने वालिदैन को, अलल अर्शी, तख्त पर, वख़र्रू लहू सुज्जदा, और सब गिर गए उनके सामने सजदे में। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठ गए, वालिदैन साथ बैठ गए, तो सब के सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। ये सजदा कौन सा था? ये सजदा, एक रवायत ये है कि ये सजदा शुक्राने के लिए था, कि सब के सब अल्लाह को ही सजदा कर रहे थे और शुक्राने के लिए कर रहे थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने 40 साल के बाद एक ख़ानदान को मिला दिया। दूसरा, मुफस्सिरीन इकराम का कौल ज़्यादा ये है कि ये सजदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था, जो कि ताज़ीम के लिए था। उनकी शरीयत में ताज़ीम के लिए सजदा करने की इजाज़त थी। हमारी शरीयत में ताज़ीम के लिए भी सजदा करने को हराम करार दे दिया गया। इसलिए उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया जो कि ताज़ीम के लिए था। वक़ाला, और फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, या आबाती, ए मेरे अब्बू, हादा तअवील रुयाया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, मिन कब्ल, जो पहले मैंने देखा। जो ख्वाब आज से 40 साल पहले, 42 साल पहले मैंने देखा था, ये अब्बू, उसी की ये ताबीर आज मैंने देखी।
क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, तहकीक बना दिया मेरे रब ने इसको सच्चा, उस ख्वाब को मेरे रब ने आज सच कर दिखाया। वक़द अहसन भी, अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इनके वालिदैन और भाई चले गए, और पीछे हमने पढ़ा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा फौत हो गई थी। तो जवाब ये ज़हन के अंदर रखिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके बाद शादी कर ली थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला के साथ, और खाला भी मंजिल माँ के होती है, इसलिए, और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी भी थी, तो इसलिए ये इनकी वालदा कहलाई। तो इसलिए वो वालदा भी हो, वालिद और वालिदा और 11 भाई, इन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया, और वो ख्वाब सच्चा हो गया जो बचपन में देखा था। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू शुरू हुई, तो आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या बात का तज़किरा किया? वक़द अहसन भी, कि ए अब्बू जी, तहकीक अल्लाह ताला ने एहसान किया भी मेरे ऊपर, किस बात का? कि इज़ अखरजनी मिनस सिजनी, कि मुझे जेल से निकाल दिया। कि अल्लाह ताला का मेरे ऊपर एहसान ये कि अल्लाह ने मुझे जेल से निकाल दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि गमनाक दास्तान सारी छोड़ दी, जो गम वाले पहलू थे वो सारे छोड़ दिए, और नेमत वाला और अल्लाह के एहसान वाला और अल्लाह की तरफ से खुशी देने वाला पहलू वो अपने बाप के सामने रखा। इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि अल्लाह की तरफ से अगर 70 दफा रहमतें आती हैं, 80 दफा रहमतें आती हैं, 90 दफा अल्लाह की तरफ से खुशियां मिल रही हैं, और कभी 10 दफा, 5 दफा, 2 दफा, 1 दफा कभी अगर गर्म हवा भी आ जाती है, उसको जुबान पर लाना दुरुस्त नहीं। अल्लाह नाराज होते हैं कि ये बंदा 99 दफा, 99 दफा मेरी रहमतों के, मेरी खुशियों के मजे चख चुका है, आज एक मर्तबा इसको गर्म हवा लगी, इसने रोना पीटना शुरू कर दिया। आप अंदाजा लगाएं, आज हमारे गम तो हैं, लेकिन क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी क्या ज्यादा हो सकते हैं? इनकी गमनाक दास्तान जो 40 साल गमों हुई गमों पर बढ़ी हुई, इनसे ज्यादा गम भी किसी के हो सकते हैं? क्या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा भी गम हो सकते हैं हमारे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब्बू से बात कहां से शुरू की? अब्बू जी, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे जेल से निकाल दिया। और दूसरी बात क्या की? वजाअ बिकुम मिनल बदवी, और दूसरा अल्लाह का शुक्र ये है कि वजाअ बिकुम, कि वो अल्लाह ले आए तुम्हें मिनल बदवी, कहां से? देहात से। बदव कहते हैं देहात को, देहात से, गांव से। किनान शहर का, फलस्तीन का गांव था, यहां पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान रहता था। और दूसरा ये अल्लाह का शुक्र हो गया, और तीसरा यह अल्लाह का शुक्र ये है कि वमिन बाद इसके कि अन्नज़ग़ शैतानु, झगड़ा डाल दिया था शैतान ने, बैनी व बैना इख्वती, मेरे दरमियान और भाइयों के दरमियान। शैतान ने तो मेरे और भाइयों के दरमियान फूट डाल रखी थी, झगड़ा डाल रखा था, तफरीक पैदा कर दी थी, ऐसे ऐसे कारनामे करवाए थे शैतान ने कि देखने में लगता ही नहीं था कि कभी हम आमना सामना कर सकेंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने वो सारे झगड़े खत्म करवा दिए। अब यहां सवाल पैदा होता है कि अब्बू के सामने वो कुएं वाला तज़किरा क्यों नहीं किया? जवाब ज़हन के अंदर रखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों के सामने इजहार फरमाया था और भाइयों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाइयों, परेशान होने की जरूरत नहीं, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं, सब कुछ माफ कर दिया। प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम, सब कुछ माफ कर दिया। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब लतीफुन, तदबीर करता है, लिमा यशा, जो चाहता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो ज़ात जानने वाली भी है और हिकमत वाली भी है। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में रहे, और फिर आगे क्या मामलात हुए इसका तज़किरा इंशाअल्लाह अगले सबक में आएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला